آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں حاضر خدمت ہے، اور چونکہ یہ ایام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے ہیں، تو اس حوالے سے تمام مومنین کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور اس گفتگو میں بہت سارے جو موضوعات ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت رہیں گے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان، عالمہ، ذاکرہ، خطیبہ شاکرہ رضا صاحبہ لنڈن سے انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام میں آپ جہاں شہادت کے بعد جو زیارت کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے ہمارے پاس، اور اس میں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد شہادت یعنی زیارت سید شہداء علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ روایات ہے وہ زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے ہیں۔ مہمان کے ساتھ ہمارا رابطہ اس وقت قائم ہو چکا ہے۔ محترمہ ذاکرہ شاکرہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا شکر ہے، مولا کا بہت زیادہ کرم ہے، سب طرح سے خیریت ہے الحمدللہ۔ اور کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایام وہی ہیں امام رضا علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سب سے پہلے تو باجی آپ کو اس پروگرام میں تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ ہمارا مہمانوں کے ساتھ رہتا ہے، تو پہلا سوال آپ کی اجازت سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں کچھ خاص نکات ہے، کچھ خاص نکات ہے، اس میں سے اگر کچھ نکات کی آپ وضاحت فرمانا چاہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ بالکل، سب سے پہلے معزز ناظرین کو، معزز سننے والوں کو میرا بہت سلام۔ اور اس تصویر رسول کا نام علی رکھا گیا، اور میری بھی خواہش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد یہ زیارت کو بہت زیادہ پڑھا جائے، اور ہمارے یہاں آپ کو آواز کے لیے تھوڑی سی آواز میں ڈسٹربنگ ہے، انشاءاللہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ جی آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، انشاءاللہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام پاک جس کی زیارت کے لیے ہر وقت مولا کے چاہنے قرار رہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ضرور آپ کی زیارت کو پہنچے۔ صحیح۔ تو یہ زیارت جو کہ سب سے زیادہ امام حسین کی زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور بعد مجلس ہمیں زیارت پڑھتے تو ہیں، مگر جب کہ گفتگو عوام الناس سے ہوتی ہے
تو اس میں کچھ خاص نکات ہیں تو وضاحت کم لوگ یہ خواہش ظاہر ہے تھوڑا سا زیارت کے اپنے معزز پڑھنے والوں کو مجھے سے بیان کرتے ہیں۔ جب ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں تو آغاز کے جملے ہوتے ہیں السلام علیکم والغرباء۔ جب ہم لفظ غریب الغرباء کو استعمال کرتے ہیں تو بعض وقت لوگ سوچ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ دولت شاندار اتنے چاہنے والے مولا کے وہاں پہنچتے ہیں، مگر یہ لقب غریب الغرباء کیا ہے؟ تو اس کی توضیح، اس کی وضاحت اس طرح سے کی جاتی ہے صحیح کہ عربی زبان میں ایک طریقہ ہے کہ جو شخص اپنے وطن سے دور ہو، صحیح، کیونکہ دیکھیے تمام چیزیں بھی موجود ہوں لیکن وطن کی دوری جی ایک غربت ہے، بالکل، وطن سے دوری، پردیس جسے کہتے ہیں جی، اس کو ایک غریب کہا جاتا ہے، بالکل۔ تو یہاں ایک لقب امام کا جو آپ کے اور بے شمار القاب ہیں اس میں آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مدینے سے بہت فاصلے پر ہیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے خاص طور سے کہ جب سفر کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا تو امام غریب ہیں کیونکہ اپنے وطن سے دور ہیں، تو اس کی خاص وجہ اس لقب کی بھی اور آپ کے زیارت کے آغازی جملے بھی یہی ہیں۔ تو میرا مولا مدینہ منورہ سے بہت دور ہے۔ دوسری چیز کہ جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ دور رہنے والے کو پردیس میں غریب الغرباء کہا جاتا ہے، کیونکہ وطن کی اپنی ایک اہمیت ہے اور وطن جس میں اب بندہ رہتا ہے اس کی کچھ اور بات ہے۔ تو میرا مولا کا آغازی جملہ یہی۔ دوسری چیز السلام علیکہ یا معین الضعفاء، بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ پر سلام ہو کمزور کے مددگار۔ جب ہم متواتر احادیث اور تاریخی واقعات دیکھتے ہیں تو کمزور اور ناتواں جس کو عام لوگ اور خاص طور سے جہاں شاہی ہو وہاں نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر ہمارے ائمہ طاہرین ہزاروں سلام ان ہستیوں پر کہ جو مددگار ہیں غریبوں کے، ناتوانوں کے، کمزوروں کے۔ یہاں لفظ کمزور کی بھی وضاحت ہے کہ جو بے بس ہے، جو ناتواں ہے، جو مجبور ہے، اگر اس در پہ آ جائے، در امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، واپس نہیں جاتا۔ کمزور اور ناتواں یعنی جو شخص اپنی مجبوریوں کو امام کے واسطے سے پیش کرتا اس کی حاجتیں پوری ہو، یہ وہ در ہے کہ جہاں شاہوں کے سر کی ایک زائر جب ایک امید سے جاتا ہے مولا کی محبت میں سفر طے کرتا تو اس مظلوم کی، کمزور کی، اس ناتواں کی دعا قبول ہے۔ اور کون سی ایسی دعا ہے جس کے لیے کہا جائے کہ بے شک حکم پروردگار ہے، یہ ہستیاں وسیلہ ہیں اور اس وسیلے سے جب وہاں سے واپس آتی ہیں تو وہ کمزور اور ناتواں خالق نہیں واپس بلکہ اپنی مرادوں کو لے کر آتے۔ السلام علیکہ یا شخص ہو، سلام ہو آپ پر اے آفتابوں کے آفتاب۔ زیارت کا یہ نقطہ ایک خاص حدیث کی طرف متوجہ کرتا ہے، آفتابوں کے آفتاب۔ حدیث کیا ہے کہ یہ ہستیاں جو مثل شمس اپنی روشنی کا کتاب
हस्तियां बता रहे हैं। ये वो हस्तियां, अस्सलाम अलैका या शख्स शमूस, ऐ आफ्ताबों की आफ्ताब, ये मंजिल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम है। और तिजारत का ये खास जुमला, ये आप वो हस्तियां हैं जिनकी रोशनी से दुनिया को रोशनी हासिल। सलाम हो आप पर है मेरे इमाम, सलाम अस्सलाम अलैका या अनीसन नुफूस। अनीसन नुफूस की वजाहत ये है, और जैसे पूछते हैं लोग, अनीसन नफूस का जिक्र वैसे भी होता है, ऐ दिलों की ढारस। जिक्र अली, जिक्र रसूल, जिक्र खुदा है। और जिक्र खुदा जो है वो क़ुलूब को तवानाई बख्शता, वो क़ुलूब को मजबूत करता है। तो वो दिल जो अपने गमो अलम से डूबे हुए हैं, गमो अलम से परेशान हैं, ये दिलों की के सहारा, ये हत्या वो हैं। और देखिए, जब ज़ियारत पर जाता है और ज़ियारत जब वापस आता है तो उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात, उसके एहसासात और जब हम ज़ियारत पे जाते हैं अक्सर और बेशतर होते हैं, मालूम नहीं क्या क्या परेशानियां, क्या क्या चीजें, क्या क्या तमन्ना अपने साथ लेकर आते हैं। बहुत से लोग बहुत उलझे हुए दिलों में होते हैं, मगर जब इस रोजे पर जब अपने मौला को सलाम करते हैं और जब इस अंदाज से कहते हैं अस्सलाम अलैका या नूर, ऐ दिलों की ढाल, तो यकीनन इमाम मासूम के वास्ते वो दिल संभल जाते, वो क़ुलूब जो परेशान आए थे अब उनको इत्मीनान क़ल्ब हासिल। जी मेरे मौला, तरमीन पर इस वक्त मैं हूँ, वहाँ तो मगर मोहब्बत फासलों को खत्म कर, मोहब्बत। और जब इमाम का तसव्वुर किया जाए और सरजमीन दूस का तसव्वुर किया जाए तो लगता है मौला हम आपके, और यकीनन हम आपसे। ज़ियारत का ये जुमला, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मस्मूद बिअर्ज़िल नुफूस, उस सरजमीन को सलाम, वो मुक़द्दस ज़मीन, वो सरजमीन जहाँ इमाम गिरद खा, तो हम उस सरजमीन को भी सलाम पेश करते हैं। ज़ियारत का ये जुमला, अस्सलामु अलैका या मुग़ीसत व ज़व्वार फी यौमिल जज़ा, सलाम हो आप ऐ ज़ायरों और दोस्तों के फरियाद रस पर क़यामत। जो इमाम की ज़ियारत को जाए और जैसा कि हम हदीस मिलती है कि मेरे जिगर का एक टुकड़ा जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम, जो आपकी ज़ियारत हो जाए यकीनन वो बहिश्त में हो, यकीनन। तो देखिए, ये इस हदीस के तहत भी गुफ्तगू हो रही है ज़ायरों और दोस्तों के फरियाद और बरोज़ क़यामत हमारे आइम्मा-ए ताहिरीन के फ़ज़ाइल को जब हम बयान करते हैं, हमारा अक़ीदा मज़बूत हो। और यहाँ फजीलतों में यही है कि तुम्हारे इमाम आइम्मा का भी जिक्र जब होता है, अगर चूंकि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मोहम्मद ये खास जुमले कि मौला आप अपने चाहने वालों, अपने फरियाद करने वालों जो आपसे सवाल कर रहे हैं इस दुनिया में भी और रोज़ क़यामत भी, मेरा इमाम हमारा आप पर सलाम हो ऐ अरब व अजम के सुल्तान। दुनिया की शाही, दुनिया की बादशाहत, दुनिया के बादशाह बस वक्त की शाही है। वक्त के साथ साथ ये निश्चित नाबूद हो जाते हैं, कोई इनका पूछने वाला भी नहीं होता। मगर हाँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद
وہ ہستیاں کہ جو ہمیشہ سے بادشاہ دنیا آخرت ہے۔ سلام ہو آپ پر اے عرب و عجم کے بادشاہ، سلام ہو آپ پر اے عرب اور عجم کے سلطان۔ اور زیارت کے جو آخری جملے یہاں پر ہیں، آپ پر سلام ہو اے حسن کے باپ، اے علی جو بیٹے تھے موسیٰ کے، جن کا لقب رضا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ یہ خاص جملہ ہے کہ جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں، ذکر ائمہ طاہرین کرتے ہیں، تو ضرور یہ کہتے ہیں پروردگار تیری رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہو ان ہفتیوں۔ سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ آخر میں 1 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں انشاءاللہ وہ پیغام آپ دیجئے مومنین کے لیے، پھر کسی اور وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ بس 1 منٹ میں اپنے مولا کے چاہنے والوں کو معزز پیغام دوں گی کہ حالات حاضرہ کے تحت امام کی زیارت پڑھیں اور امام سے کو وسیلہ بنا کے دعا مانگے کہ پروردگار جلد از جلد حالات بہتر ہوں، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت رہے، اور پروردگار جو اس وقت کچھ زائرین کے سلسلے رک گئے ہیں، بار الہا یہ سلسلہ دوبارہ اسی طرح رہے، اور اس روزے کی شان اور ہمارے مقدس مقامات جو بلند روزے ہیں، بار الہا ان کی رونقیں اور مولا کے چاہنے والے رونقیں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں۔ اور امام رضا کے سلام کے صدقے میں جو بھی پریشان ہے، اس پروردگار اس کی پریشانی دور کر، اور یہ جب عبادت ختم ہو سکون اور امن آئے، اور ان ہستیوں کے واسطے سے جو بھی بیمار ہیں وہ شفا یاب ہوں۔ مولا کا ایک ڈر ہے جہاں سے لوگ شفا حاصل کریں، تو بالکل مریضوں کے لیے میری دعا ہے پروردگار امام واسطے سے ان کو مکمل شفا عطا نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ انشاءاللہ میں کسی اور وقت بھی مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں، تاکہ انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد فرمائیں، شکر گزار ہیں۔ میری ایک درخواست ہے، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں اور میری فیملی کو دعاؤں میں اور جلد از جلد ہم انشاءاللہ ضرور دعا گو ہے آپ کی طرف سے، نائب وزیر اور دعا گو ہے، شکر گزار ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، شکریہ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہی تھی عالمہ خطیبہ شاکرہ رضا صاحبہ، اور لندن سے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے انہوں نے گفتگو کی، اور یہ گفتگو یقیناً اگر کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے، جو زیارت کے جملے ہیں واقعاً تفسیر کے قابل ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے۔ اور جہاں تک حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا تعلق ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے ہوگا، یعنی ان کا نام علی ہوگا، خراسان کے سرزمین طوس میں زہر سے شہید کیا جائے گا اور حالت غربت میں وہاں مدفون ہو جائیں گے۔ جو شخص معرفت کے ساتھ یعنی عارفاً بحقہ ہی اگر کوئی شخص ان کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا اجر عطا کرے گا جس نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا ہو۔ یعنی فتح مکہ کے بعد، ظاہر ہے فتح مکہ کے بعد پھر مسلمانوں کے پاس مال دولت زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، لیکن اس سے پہلے جو غربت کا دور تھا تو اس شخص کو اسی مسلمان کا درجہ دیا جائے گا، اور
उसने गोया कि राह खुदा में जिहाद और इन्फाक किया हो। क्योंकि बाज़ असहाब में से ऐसे हजरात थे कि जिन्होंने हत्ता अपने घर भी राह इस्लाम में उनका भी इन्फाक कर दिया था। इन्फाक करने वाले लोग थे और ईमान वाले लोग थे। तो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आरिफन बेहक ही हज़रत रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ियारत करे खुरासान में, उसको उस मुसलमान का अजर व सवाब मिलेगा कि जो सदर इस्लाम में मुसलमान हुए थे फ़तह मक्का से कबल। फ़तह मक्का के बाद ज़ाहिर है कि फिर गनीमतें आई और बहुत सारी चीज़ें आई। तो बहुत सारे लोग फिर बाद में जो मुनाफिकीन का एक गिरोह था, अलबत्ता पहले भी मुनाफिकीन थे, लेकिन बाद में फिर मुनाफिकीन जो है वो उनकी तादाद ज़ाहिर है बढ़ी। तो ये ज़ियारत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से हैं और बहुत सारे मज़ीद रिवायात भी इस बाब में मशहूर है। और लेकिन आप मोमिनीन से मैं प्रोग्राम के उन्वान से कहना चाहूँगा कि जिन मोमिनीन ने कॉल्स करने हैं, आप कॉल का सिलसिला जारी रखें। और इस प्रोग्राम में चूँकि आपके लिए पहले थोड़ा सा मेहमान से गुफ्तगू होती है, वो भी एक प्रोग्राम के तमहीद के तौर पे, वगरना जो असल सिलसिला है इस प्रोग्राम का वो आप मोमिनीन के लिए है कि इंशाल्लाह आप इसमें कॉल करें और तवस्सुल करें बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। और ये सिलसिला इस तरीके से जारी रहे। किताब उयूनुल अखबार रज़ा में एक और रिवायत है कि ये रिवायत भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं। युक़्तलो हफ़ीदती फ़ी अर्ज़ खुरासान, खुरासान के सरज़मीन पर मेरे एक पोते को शहीद कर दिया जाएगा। इशारा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा एक पोता खुरासान के शहर तूस में शहीद होगा। यानी खुरासान में उस ज़माने में ज़्यादातर लोग तूस कहते थे, अभी भी किसी हद तक ही है, लेकिन उस ज़माने में इस इलाके को तूस का इलाका, बाज़ लोग उसमें से कुछ मंतिके थे जिस हर मंतिके का एक अपना ख़ास नाम था, मर्व भी कहते थे। तो कहा कि वहाँ पर मेरा एक पोता शहीद कर दिया जाएगा। जो शख्स मार्फत के साथ उसकी ज़ियारत करे, यानी आरिफन बेहक़ ही, अगर एक शख्स इमाम की मारिफत और आरिफन बेहक़ ही की तारीफ़ जो मासूम ने फरमाई है वो इस उन्वान से है कि इंसान जिस इमाम की ज़ियारत कर रहा है उसको मनसूस व मनसूब मिन अल्लाह व मिन जानिब रसूलुल्लाह उसको इमाम मानता हो, यानी रसूलुल्लाह ने उसका अल्लाह की तरफ से मंसूब हो और नस मिन जानिब रसूलुल्लाह मौजूद हो। मिन जानिब अल्लाह हकीकतन नस है तो वो मौजूद होना चाहिए। संजीदा नकवी साहिबा खैरपुर मीरत से हमारे साथ कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह मोहतरमा, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला की फ़िज़ाओं में है और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। कोई दुआ करना चाहें दुआ भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यदात निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी व मौलाई इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम व जद्दक वाबिका, अस्सलाम वालेकुम व उम्मिका वाक़िका, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ीन मा क़यलतनी कुंतुम माकुम फौज़ा फौज़न अज़ीमा, अस्सलाम वालेकुम सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शहीदुल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम ख़ाला बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शरीफ़ा बिन्तुल हसन, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न हसन, अस्सलाम वालेकुम खानवादे अबू तालिब, अस्सलाम वालेकुम या अब्बास पीर खुदा, लाखों दुरूद, अस्सलाम वालेकुम साहिब असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम इमाम मिस्र वल जान, अस्सलाम वालेकुम सफीनतुन निजात, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मान हाज़िर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुइनुल दुआ वल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम कंज़ुल जमू, अस्सलाम वालेकुम बीबी मासूमा क़ौम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आप पर आपके ख़ानदान पर लाखों दुरूद व सलाम हो। मौला मेरी परेशानी मेरी मुश्किल को आसान करना, मेरी ज़हनी परेशानी को दूर करना, मौला ख़ताओं को बख्श देना, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करना, मेरे माँ बाप की कब्र को कुशादा करना, मेरे मौला
हर बलाओं से महफूज रखना, सबकी परेशानियां दूर करना, कुल मोमिन का भला करना, मेरा भी भला करना। वास्ता बीमारी करबला के सदक़े से जितने बीमार हैं सबको शिफा का कुल्ली अता करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इलाही आमीन, अगर आपको कामयाबी अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह आपको भी अपने ज़ामान में रखे और तमाम दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमीन। शुक्रगुज़ार है आपके, और जहाँ तक हो सके मज़ीद मोमिनीन के साथ भी शेयर करते रहिए नंबर को, ताकि इंशाल्लाह मज़ीद मोमिनीन भी शिरकत कर सके। शुक्रगुज़ार है आपके, मौला आपको अपने ज़ामान में रखे। शुक्रिया जी। ये सिलसिला जो मोमिनीन ने जारी रखा है कॉल्स का, इस सिलसिले को आप भी राइज फरमाइए, और जहाँ तक हो सके दूसरे मोमिनीन के साथ भी शेयर करें, ताकि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा रौनक आपकी रहे। तो इमाम ने फरमाया कि मेरे पोतों में से एक पोता, मेरी नस्ल में से मेरा एक शहज़ादा, उसको शहीद कर दिया जाएगा, और जो इसकी आरिफन बेहक़ की ज़ियारत करेगा उस शख्स को हाथ पकड़ के वारिद बहिश्त किया जाएगा। यानी बरोज़ क़यामत उसका हाथ पकड़ के उसको वारिद बहिश्त किया जाएगा, वलो कि वो शख्स गुनहगार ही क्यों ना हो। बेशक उसके गर्दन पे गुनाहें हैं, लेकिन ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से ये शख्स वारिद बहिश्त कर दिया जाएगा। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ियारत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या फ़यूज़ और बरक़ात है, और इस ज़ियारत से क्या कुछ होता है। इस कदर यानी इस ज़ियारत की अहमियत और फजीलत है। इम्तियाज़ हुसैन खैरपुर मीरत से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ खैरपुर मीरत से करबलाए मौला तक पहुँच रही है माशाल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए करें, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अबू अल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम औलाद रसूल सल्लल्लाहु, अस्सलाम वालेकुम असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शुहदा करबला। मौला हादी अब्बास के सच्चे बीबी ज़ैनब के सच्चे मौला मुझ पे नजर करम करें और मेरी दुआएं कबूल करें। मेरे घर वालों पे भी मौला नजर करम करें। मौला मुझे वसी रिज़्क़ अता करें। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के सदके में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, और आप माशाल्लाह हमारे बाकायदा स्पॉन्सर भी है और माविन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के। आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके नंबर को भी शेयर करते रहिए, ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। शुक्रिया आपका, मौला आपको अपने ज़ामान में शुक्रगुज़ार है। सलामत रहिए जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि जहाँ मोमिनीन इस प्रोग्राम को वक्त देते हैं और वॉच करते हैं, और साथ में कॉल्स भी करते हैं, और दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर करते हैं। अलबत्ता सदका जारिया समझ के आप इस खिदमत को अंजाम देते रहिए। ये वो खिदमत है कि जो इंसान के आखिरत में काम आते हैं हकीकतन, और ये होना चाहिए। बेशक ये ना देखा करे कि कौन है ये शख्स, किसका ये टीवी चैनल है, कौन इसमें। हो सकता है हम जैसे कोई ऐसे लोग हो जिससे लोग तनफ़ुर करते हो, मसला नहीं कर्ज कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता। तो हम लोगों को या इस किस्म के किसी एक शख्स को इंसान न देखें, बल्कि आप असल हदफ को देखें। मोमिन दकीक होता है, असल हदफ को मद्देनज़र रखता है। वगरना जो हालत हम लोगों की है, हकीकतन कोई आलिम इस उन्वान से फरमा रहे थे कि असल में जो इस्लाम के सबसे ज़्यादा दुश्मन पैदा किए हैं ना, वो हम लोगों ने पैदा किए हैं। चूँकि हमारे मनफूर अखलाक और हमारी जो है वो मनफूर आदात, और हमारी जो है वो मनफूर कलाम, और जिसको कहा जाए ला इल्मी और जहालत, इसकी वजह से भी बहुत सारे हम लोगों ने जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो सामने कर दिया कि जो लोगों के लिए कोई ख़ास, बल्कि उनसे लोग नफ़रत करते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले आप इंसान जो है वो अल्लाह से तौफीक हासिल करें, और अल्लाह जो है अगर साथ में रहें तो वो फिर
کوئی اسلام کا اور کوئی دین کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، وگرنہ جس طریقے سے یہ حالات ہیں، عام حالات میں جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ان لوگوں کی نفرت میں بھی لوگ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے اس دنیا میں. اور ایک اور روایت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضرت رضا علیہ السلام ماشاءاللہ اتنے روایات ہے، یقین جانیے کہ بعد زیارت سید شہداء علیہ السلام سب سے زیادہ روایات زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے وارد ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، من زاربنی ھذا فلہ الجنہ، جس نے میرے بیٹے کی زیارت کی، یعنی حضرت رضا علیہ السلام کی زیارت کی. روایت مفصل ہے، ظاہر ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور زیارت کی اس کے لیے جنت ہے. بشرا رضوی صاحبہ کراچی سے ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کراچی سے کربلا مولا تک پہنچ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں سلام عرض کریں. بسم اللہ فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم وعلی حسین ابی حسین وعلی انصار حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری شدید خواہش ہے کہ میں بس روبرو ہو کے روزہ امام حسین اور مولا عباس کے روزے سے روبرو ہو کے اپنا سلام عقیدت پیش کروں. مولا میرے سلام کو قبول کریں اپنی بارگاہ میں. جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے اس پروگرام کے توسل سے ہماری مولا سے مجھے ڈائریکٹلی کمیونیکیشن، ڈائریکٹ ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مومنین ایک نظر کا ارادہ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ بے شک ضرور. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. شہدائے کربلا میں سے 72 شہداء میں سے کسی کا نام لے لیجئے، یا 12 اماموں میں سے، تاکہ ایک نسبت ہو سکے اور انشاءاللہ آپ کی دلی حاجات پورے ہو سکے. کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ جزاک اللہ. ان قریب انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت قریب ہے ماشاءاللہ. تو میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنے جد کو اپنا سلام پیش کروں اور میرے جد میرا سلام قبول کریں، اپنی بارگاہ میں میرا سلام قبول کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کا جو وسیلہ ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام، اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے مزید مومنین کے ساتھ بھی ہمارے ٹی وی کا نمبر شیئر کرتے رہیے، تاکہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے مومنین اس پروگرام میں مزید بھی شرکت کر سکے. شکر گزار ہے آپ کے. مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو بارگاہ سید شہداء علیہ السلام میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور جہاں مومنین کرام بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی الفت کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، یہ یقیناً اس کو ایسا نہ سمجھیے، بلکہ اس کو اس عنوان سے دیکھیے کہ دیکھیں ایک نقطہ میں عرض کروں کہ کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اور کوئی چھوٹی نیکی بھی نہیں ہے. بارگاہ خداوندی میں آپ نے ایک نیکی کی، آپ نے نیکی یہ سمجھ کے کی کہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بڑی نیکی ہے، بے شک کہ والا وہ چھوٹی نیکی ہو. اور جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، چونکہ آپ نے اس اللہ اور اس عظیم اللہ کی نافرمانی کی ہے. اس کو مد نظر رکھیے. یعنی اگر انسان ایک چھوٹا گناہ صغیرہ کر لے تو گناہ صغیرہ کو آپ صغیرہ نہ سمجھیے، چونکہ آپ نے ایک نافرمانی تو کی ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان نیکی کرتا ہے نا تو نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، چونکہ اس پروردگار عظیم کے لیے آپ نے اس نیت سے نیکی کی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے. تو اگر اس پروگرام میں ایک انسان کال کرتا ہے اور وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے، بے شک ولو وہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، یہ جملہ نیکی تو ہے، اس میں شک نہیں ہے. اور اگر انسان اپنا مختصر وقت بھی نکالے تو اس کو انسان کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بڑی نیکی ہے، واقعاً بڑی نیکی ہے. تو
यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी है ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और रिवायत बड़ी मुहकम रिवायात मौजूद है कि जब बरोज़ क़यामत ज़ायरीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिद महशर किए जाएंगे तो उनके चेहरे के नूर को लोग देखते हुए मुताज्जब हो जाएंगे, और वो ये हर अहले महशर ये तमन्ना कर रहा होगा कि काश हम भी ज़ायरीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में होते। तो यकीनन अगर इंसान करबला नहीं पहुंच सकता किसी मुश्किल की वजह से, वीज़े के मुश्किल की वजह से, पासपोर्ट की वजह से, या जाके माली इक्तिसादी मशाकिल की वजह से, या इंसान की सेहत जो है वो इस कदर नहीं है कि वो सफ़र कर सके, या इंसान जो है वो हवा की वजह से, गर्मी या सर्दी की वजह से, या दुश्मनी की वजह से, खौफ की वजह से, हिरास की वजह से, या किसी भी उन्वान से अगर वो नहीं पहुंच सकता, कोई उसकी मुश्किल है, राह दूर से ज़ियारत करता है, यकीनन ये शख्स भी ज़ायर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है। और ज़ियारत का ये मौका बहरहाल इसको हाथ से न जाने दें, और ये प्रोग्राम आपके लिए ही रखा गया है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। इस प्रोग्राम की वसातत से मोमिनीन किराम राह दूर से अपने ज़ियारत को, अपने इज़हार अक़ीदत को मौला की बारगाह तक पहुँचा सकते हैं। तो खिदमत में अर्ज़ करें कि एक रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं गुर्बत की सरज़मीन में जहर से शहीद किया जाऊँगा, इन्नी मक़तूलुन व मस्मूमुन, मुझे कत्ल किया जाएगा और मस्मूम किया जाएगा, यानी जहर के साथ मेरी शहादत वाक़या होगी। और फरमाया कि क़यामत के दिन मैं और मेरे अजदाद उस शख्स की शफात करेंगे जो मेरी ज़ियारत करे। तबस्सुम रिजवी साहिबा कराची से हमारे साथ कॉल पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा इस वक्त आपकी आवाज़ कराची से करबला तक पहुंच रही है। अपने मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें, और कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम माशाल्लाह। अस्सलाम अलैका व अबू व बालहा व बनु, अस्सलाम अलैका या साहिब बरकत व ज़मान व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब दुआ ये करने की मौला मेरे बच्चे का हाथ पैर अच्छा हो जाए, बड़े बच्चे का रास्ता खोल दे, हर एक बीमारी को शिफा दे मौला, मेरी भी बीमारी को दूर करे, अपने यहाँ बुलाने की तो मुझे इजाज़त दे, आशूरा पे बुलाए, चहलम पे बुला ले मौला, मुझे मेरे बच्चों को जो आना चाहता है मौला गैब से मदद करे। मेरी बेटी जाना चाहती है मगर इस्तेताअत नहीं है उसकी, इलाही आमीन, मौला इसके लिए मदद कर दे, गैब से दे दे। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन किराम कॉल करते हैं अपने हाजात की कबूलियत के लिए, हस्ब तौफीक एक नज़र का एहतमाम नज़र करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगी? इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। मेरे बड़े भाई का पैर सही हो जाए, छोटे भाई के बीमार है वो मजला भाई वो सही हो जाए, मौला उसका घर बस जाए, छोटा भाई शुगर का पेशेंट है उसकी शुगर सही हो जाए, मौला आपको जो नजराना होगा जरूर पेश करूंगी, जरूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपने जो नियत की है ये नियत अजीम चीज़ है, इंसान के अमाल नियतों के ऊपर है। और आप 72 शुहदा में से किसी एक हस्ती का नाम ले लें, या 12 इमामों में से किसी का नाम ले लिए, ताकि एक निस्बत कायम हो जाए और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? अभी तो मौला रजा की विलादत के दिन चल रहे, मौला उनके सदके में मासूमात उनके सदके में हर एक की दिल हो जाए, हाजतों को पूरा करे, फिर मेरी हर हाजतों को पूरा करे मौला। इलाही आमीन, इलाही आमीन।
जो बेघर है उन्हें घर जैसी नेमत से नवाजे मौला, मुझे भी घर जैसी नेमत से नवाज दे। इलाही अमीन, इलाही अमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी जो भी हाजात है मौला मुस्तजाब फरमाए और आपके रिस्क ईमान में बरकत अता फरमाए, बच्चों को कामयाबी नसीब फरमाए, ज़ियारत सैयद शुहदा आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया आपका। और आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि मज़ीद भी मोमिनीन के साथ हमारे नंबर को शेयर करते रहिए ताकि आप जैसे मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह सलामत। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहे। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। और बहुत देखें ये ऐसे ही है कि इंसान जब दुआ करता है नियत भी कर ले, नज़र भी कर ले। और वैसे भी मैं अर्ज़ करूँ खिदमत में कि जब देखें नज़र करना दुआ के लिए रखा गया है, वाक़ई बाज़ रिवायात में मौजूद है कि इंसान जब सदका देता है या नज़र के तौर पे 3 दिन रोज़ा रखता है वग़ैरह, तो ये होना भी चाहिए, कोई मसला नहीं इसमें। रिवायत जो है फरमाया कि फ़मन ज़ारनी फ़ी ग़ुरबती, जिसने मेरी ज़ियारत की आलम ग़ुरबत में। ज़ाहिर है हज़रत रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि चूँकि खुरासान में आप हालत ग़ुरबत में दुनिया से रुखसत हुए, शहीद किए गए। फरमाया जिसने ज़ियारत की मेरी ग़ुरबत में, मैं और मेरे अजदाद उस शख्स की शफ़ाअत करेंगे। फ़ातिमा आबिद साहिबा इस्लामाबाद से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या पाक। माशाअल्लाह जी, सलाम अर्ज़ करें। जी जी बिस्मिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। जी, मौला ज़रूर। को सलाम। ज़रूर इंशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ इस्लामाबाद से करबला मौला तक पहुँच रही है और माशाल्लाह आपने सलाम मौला की खिदमत में पेश किया। अगर कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए, चूँकि इस मकाम पे करबला में दुआएं कबूल होती है और हर एक, मैं और आप जो भी है, हर इंसान की जो है कोई ना कोई दुआ है। तो अगर कोई दुआ करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी जी वही दुआएं तो बहुत है। मौला की ज़ियारत, इसमें ज़ियारत अता फरमाए इलाही मौला, आमीन, इसमें इलाही ज़ियारत अता बस फरमाए। ये ऐसी दुआ आपने कर ली जिसमें खैर दुनिया और आखिरत जो है इसी दुआ में है। क्योंकि ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुनिया और आखिरत की अगर किसी को कोई तलब है तो इसी ज़ियारत से वो सारी चीज़ें जो है वो हल हो जाती है। मौला आपको सलामत रखे। बहरहाल अल्लाह आपकी मार्फत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह जो भी आपके शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए, आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाजी इस प्रोग्राम में मोमिनीन अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक नज़र का इरादा भी करते हैं, तो हस्ब तौफीक इंशाल्लाह आप भी इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, नियत कर ले। इंशाल्लाह जब आपके हाजात पूरे होंगे और वसाइल फराहम हो जाएंगे फिर आप कर ले नज़र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। 72 शुहदा में से किसी एक हस्ती का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से किसी का नाम ले, ताकि एक वसीला भी कायम हो जाए और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो। किसका नाम लेना चाहेंगे? बाबुल हवाइज मौला गाजी के वाह पास सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि जहाँ तक हो सके हमारा नंबर आपके मोबाइल में महफूज है, ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन के साथ शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। शुक्रिया आपका। मौला आपको अपने ज़मान में रखे। सलामत रहे। खुदा हाफ़िज़। दुआ में याद रखें। मोहताज दुआ ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलामत रहे। खुदा हाफ़िज़। जी बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये सिलसिला तवस्सुल जिस तरीके से मोमिनीन तवस्सुल फरमाते हैं और इसी में यकीनन इंसान की आखिरत और दुनिया है, दुनिया और आखिरत यही है। और मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आप देखते हैं बहुत सारे उलमा किराम है या जो आमिलीन हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ अमल बताते हैं, फिर उसमें से जो है वो कुछ शराइत बताते हैं, मतलब खाने पीने की शराइत में से या वक्त की शराइत है वगैरह वगैरह। देखें ये सब चीज़ें अपनी जगह पर है
اور واقعی روایات ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور جو انکار کرتے ہیں وہ پتہ نہیں لیکن مذہب شیعہ میں بعض جو عملیات ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، واقعی ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایات ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل اگر وہ زیادہ آپ کے لیے پر اثر ہوگا اور اس کا اثرات آپ کے اوپر ہوں گے تو وہ یقیناً اہل البیت علیہ السلام سے توسل کی وجہ سے ہوں گے۔ آپ کریں، ہر نیک عمل کریں، لیکن اہل البیت علیہ السلام سے توسل ضرور رکھیں، اسی سے ہی آپ کے مشکلات کا حل ہے دنیا اور آخرت میں، یہ وسیلہ ہے۔ تو زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے، لیکن اس سے پہلے صدف علی صاحبہ کراچی سے ہماری نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی میں آپ سب کو سلام کہتی ہوں، میں ماشاءاللہ زیارت پڑھنا چاہوں گی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا کی فضاؤں میں ہے۔ اس لائیو پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ خوش بختانہ آپ کی آواز کربلا مولا میں، اپنے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آپ سلام عرض کیجئے۔ کوئی دعا بھی ہے تو وہ بھی کر لیجئے، چونکہ اس مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ جی بالکل، بس دعا یہی ہے کہ میں جو بھی دعا میرے دل میں ہے مولا میری دعا ضرور قبول کریں اور میری زیارت کو قبول کریں۔ اور آج اتنی خاص کہ میری کال لگ گئی ہے، سلامت رہیں، تو آپ جو کال کی ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، یقین بھی نہیں آ رہا، مولا آپ کو اور بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مولا میری دعا ضرور قبول کریں۔ میں ان کی زیارت پڑھتی ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین و سید الوسیم، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین شہید، السلام علیکم یا ایھا الشہید، السلام علیکم یا ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذالک فرضیت بہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا میری زیارت کو قبول کرے، الہی آمین۔ اور میں ایک گزارش سسٹر آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام میں مومنین کرام کال کرتے ہیں، اور جو ان کی دلی حاجات ہوتے ہیں، یقیناً آپ کی بھی دلی حاجات ہوں گے، اس حاجات کی قبولیت کے لیے ایک نظر کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہے جب وہ حاجات پورے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ نظر بھی کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں نظر کرنے میں؟ جی انشاءاللہ جی بالکل، کس نیت طرح کر کی لیں۔ نظر کرنی ہوگی؟ جی نہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، جتنا آپ بے شک اپنے دل میں جتنا بھی رکھیں وہ آپ کی اپنے اعتبار سے ہے، جتنی انسان کی ایک وسعت ہوتی ہے، جتنا انسان کر سکتا ہے، تو آپ اپنے دل میں جتنی مقدار میں بھی رکھنا چاہیں وہ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور میں مصلحتاً یہ عرض کروں گا کہ 72 شہداء میں سے یا 12 اماموں میں سے کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے، تاکہ ایک وسیلہ آپ کے لیے قرار پائے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ کس کا نام لینا چاہیں گی آپ؟ میں مولا عباس کا لینا چاہوں گی، بس مولا عباس کے وسیلے سے اللہم امام صلی حسین علیہ علی السلام کی محمد بارگاہ میں مولا ان کے وعجل وسیلے سے فرجہ۔ میری دعا قبول کریں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ یقیناً بہت بڑا وسیلہ ہے، مولا آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول و مقبول فرمائیں۔ اور سسٹر الہی آمین۔ ہمارا نمبر آپ کے پاس آپ کے موبائل میں محفوظ ہے، آپ دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اپنے احباب اور جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں مومنین ہیں، تاکہ آپ جیسے مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت فرما سکیں۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، آج بھی کافی سارے مومنین نے بہرحال شرکت کی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن اس سے زیادہ مہم زیارت سید شہداء علیہ السلام ہے کہ راہ دور سے ہماری خواہش ہے کہ ظاہر ہے آپ جب زیارت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہم تک بھی تو پہنچتا ہے، اور ہمیں تو اس پر یقین ہے، یقیناً آپ ہی کی دعائیں ہیں کہ سارا نظام چل رہا ہے، ورنہ اتنا آسان نہیں ہوتا، واقعاً ایسی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مومنین
کاش ایسا ہو جائے کہ لاکھوں مومنین کی لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہو کہ ان مومنین نے زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔ رباب فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہماری نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کراچی سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک طرح سے آپ الحمدللہ مولا کی زائرہ ہیں راہ دور سے۔ میں چاہتا ہوں اپنے مولا کی خدمت میں بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں سلام عقیدت پیش کیجیے، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجیے۔ بسم اللہ۔ مولا السلام علیکم بابا اللہ حسین، یا میرے مولا یہاں پر بھی دکھاری عالم، آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، آپ کو اپنی ماں کو بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ دیتی ہوں۔ مولا مجھے اپنی زیارت کے لیے بلا لیجیے، آپ کو حجاب زینب کا واسطہ دیتی ہوں۔ مولا مجھے اپنی زیارت کے لیے بلا لیجیے، تو پریشانیاں دور کر دیجیے مولا۔ مولا مجھے میرا گھر کر دیجیے مولا، مجھے میرے ابو کو بھائی کو سب کو کاملہ مولا کو سننا دیتے، ورنہ میں حسین کے جو پاس مولا میری پریشانی بیماری ازاری ختم کر دے۔ یا مولا امام حسین، آپ کو اپنے بھائی کی شہید بازوؤں کا واسطہ میری دعاؤں کو سن لیجیے۔ یا مولا امام حسین، آپ کو حجاب زینب کا واسطہ ہمیں نماز کا پابند کر دیجیے، اول نماز کا پابند کر دیجیے۔ امام حسین، آپ کو آپ کی مادر محبت کا واسطہ میری امی کی مغفرت فرمانے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے مولا۔ مولا میری پریشانیاں دور کر دے، مجھے ایک دفعہ مرنے سے پہلے اپنی زیارت کے لیے بلا لے مولا۔ مولا میں ہر سال تڑپتی ہوں آپ کی زیارت کے لیے مولا، مجھے ذاکرہ مہیا کریے، مجھے اپنی زیارت کے لیے بلا لے مولا، اپنی زیارت کے لیے بلا لے۔ محمد محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس مزید معرفت میں اضافہ فرمائے۔ اور میں سسٹر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین کرام کال کرتے ہیں اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے نظر کرتے ہیں مختصراً، جتنا بھی انسان کی وسعت ہو۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی جی بھائی بالکل ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں مصلحتاً عرض کر رہا ہوں کہ شہدائے کربلا میں سے 72 شہداء میں سے یا 12 امام اطہار علیہ السلام میں کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے، تاکہ ایک وسیلہ قائم ہو سکے آپ اور اللہ کے درمیان، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو سکے۔ کس کا نام لینا چاہیں گی آپ؟ میں مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لینا چاہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور جو بھی آپ کے حاجات ہیں مولا قبول فرمائے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے نمبر کو بھی دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، تاکہ آپ جیسے باعقیدت شخصیات اس پروگرام میں مزید بھی شامل ہو سکے۔ شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ، آمین۔ سلامت رہے، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، آج بھی کافی سارے مومنین کرام نے کالز کیے اور بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام صلوات و السلام میں اپنی نذران عقیدت کو پیش کیا، اور ساتھ میں دعائیں بھی کی۔ انشاءاللہ جو دعائیں مومنین نے کی ہیں مولا قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کے وساطت سے۔ اور اس پروگرام میں کوشش کی جا رہی ہے کہ مہمانوں کو بھی دعوت کیا جا سکے۔ اگر آپ واقعاً اہل سخن ہیں تو آپ بھی رابطہ کر لیجئے گا امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر، انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں ایز اے گیسٹ بھی آپ کو دعوت کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ماشاءاللہ آپ کچھ نظر کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں اور نظر کر سکتے ہیں اپنے حوائج کی قبولیت کے لیے۔ اور نیکسٹ کالر ہے زہرا صاحبہ فیصل آباد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کیجئے مولا حسین کی خدمت میں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین،
अस्सलाम वालेकुम या सहाबुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या कम बनी हाशिम। मौला हुसैन बादशाह मौला गाजी अब्बास आपको सलाम अर्ज करती हूँ और बीबी मासूमा कोमुल इमाम गजा बादशाह की विलादत के वसीले से आपकी बागफ्तस में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, बावी आका के ज़ुहूर में आसानियाँ हो, हमें ऐसे अमल करना नसीब फरमा मौला जिससे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में आसानियाँ हो, इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो, बाप सैयदा फातिमा ज़हरा के दुश्मनों को बेनकाब हो जाए, हक़ ज़हरा अया हो जाए। ए बादशाह हुसैन बेशक फुतरस को भी शिफा दी है। मौला हुसैन आपके दर से कोई कभी खाली नहीं गया, बेशक मौला हुसैन बादशाह। मौला हुसैन में जी परेशानी में मुब्तला हूँ, आप जानते हैं। मौला हुसैन हम इस काबल में ही मौला हुसैन मेरी दुआ को कबूल फरमाइए, मेरी माँ शमशाद अख्तर वालदा को शिफा दे मौला, कोई परेशानी वाली बात ना हो, ऐसे ही शिफा दे दे मौला, मदद कर दे मौला, हॉस्पिटल जाना ना पड़े मौला हुसैन, आपके वसीले से मौला अब्बास के वसीले से, बीबी ज़हरा के वसीले से, बीबी उम्मुल बनीन के वसीले से शिफा दे दे, नजब अब्बास को शुगर से शिफा दे दे, अभी बड़ी को जितनी बीमारियां हैं इमाम सज्जाद की शरीफा के सदके में शिफा दे दे मौला, जो बेघर है घर दे दे, बे औलाद को औलाद दे। ए मौला मेरा जो नौकरी का मसला है वो हल फरमा दे, फिजा बतूल नजफ अब्बास के अच्छे नसीब फरमाई, बीबरी हुसैन ज़हरा के अच्छे नसीब फरमाई। ए मौला हुसैन हमें इजाज़त दीजिए मौला, बस हम भी आपकी ज़ियारत करें, आपका शुक्रिया अदा करें, जो आपके एहसानात हैं मुझ पे मौला, मुझे ज़्यादा नसीब फरमाइए, मैं आपके आपका शुक्रिया अदा करूँ मेरे मौला हुसैन। मौला हुसैन शमशाद अख्तर को शिफा दे, कोई परेशानी वाली बात ना हो मौला हुसैन, मेरी परेशानी दूर फरमा दीजिए, अभी बड़े नजब को भी शिफा दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वाजिब मौला आपको अपने ज़ामान में रखे और खुसूसन आपकी वालदा की सेहत के लिए दुआ गो है मौला, शमशाद अख्तर साहिबा को सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए और आप लोगों की पूरी फैमिली के लिए खुसूसी दुआ गो है मौला, आप लोगों को वो लोगों के ऊपर खुसूसी रहम करम फरमाए इंशाअल्लाह, सलामत रहे मौला के ज़ामान में रहें, शुक्रगुज़ार है और इंशाअल्लाह मज़ीद मोमिनीन के साथ भी नंबर को शेयर फरमाते रहिए, सलामत रहे, शुक्रिया आपका, खुदा हाफ़िज़। जी जितने भी मोमिनीन किराम हमारी आवाज़ को समात फरमा रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रोग्राम का इंतहा तक पहुंच चुका है और सेकंड पार्ट में हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हरदिल अज़ीज़ आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुखातिब रहेंगे और साथ में मेहमान भी होंगे इंशाअल्लाह, आप भी फैज़याब होंगे और साथ साथ में कॉल भी करते रहिए ताकि इंशाअल्लाह प्रोग्राम का माहौल बना रहे। सलामत रहे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर इंशाअल्लाह आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि पर, और लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक गसब करने वालों पर, उनको अपने जैसा समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम करबला मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आप सबसे इल्तिमास है कि आप इस प्रोग्राम में कॉल कीजिए, मौला की ज़ियारत तिलावत कीजिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के जो क्राइसिस के हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, इन हालात के अंदर आप अपने अपने वाजिबात, अपनी अपनी डोनेशंस, अपनी अपनी स्पॉन्सरशिप्स और अपने सदाकात व खैरात और अपनी वाजिबात इस चैनल की खिदमत में पेश कीजिए, ताकि ये चैनल अपने मुश्किल हालात से बाहर आ सके और ये सिलसिला ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी व सारी रह सके। और आप सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों को पेश कर सकते हैं। अगर आप समझें कि इसमें आपको कोई मुनासिब नज़र आ रहा है तो आप अपने डोनेशंस को ज़रूर शेयर कीजिए, वरना कॉल ज़रूर कीजिए और मौला को सलाम ज़रूर भेजिए। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर को लेकर आपकी खिदमत में मौजूद हैं। प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। टेलीविज़न का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 है, और इसका दौरानिया 2 घंटे है। इराक़ी टाइम रात में 8 से 10 बजे के दौरान, पाकिस्तानी टाइम रात में 10 से 12 बजे के दौरान, और इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान, और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 11 से 1 बजे के दौरान ये टेलीविज़न आप सबकी खिदमत में हाजिर होता है और अपना प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर आपकी खिदमत में पेश करता है। ये इतने सारे कंट्रीज़ के नाम लेकर वक्त बताने का मकसद यही था कि आप इस दौरान में कॉल करेंगे तो आपकी कॉल लाइव प्रोग्राम में रिसीव की जाएगी और आप मौला को सलाम भेज सकते हैं। और अगर आप अगले दिन में या किसी और वक्त के अंदर कॉल करते हैं तो आपकी कॉल लाइव प्रोग्राम में नहीं आ सकेगी, क्योंकि काफ़ी सारे मोमिनीन मुख्तलिफ औकात में कॉल करते हैं जो प्रोग्राम में नहीं आ सकती। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉल लाइव प्रोग्राम में शो अप हो और आपकी कॉल को लाइव प्रोग्राम में दिया जाए, तो आप इस प्रोग्राम के टाइम में जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त में आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब शौकत भारती साहब, तज़ियाकार हैं मुंबई से। हम उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जनाब शौकत भारती साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। या अली मदद, या अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैर आफियत से हैं इंशाल्लाह? जी खुदा का शुक्र है। सलामत रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में हम आपकी खिदमत में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं, और हमारी खुशबख्ती है कि आप इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और हमारी ख़ास अक़ीदत जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है, दुनिया में ये बात आश्कार है, छुपी हुई नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले ज़ियारती मकामात पर रहने वाले लोग भी ये बात कहते हैं कि अगर बर्रे सग़ीर पाक व हिंद से आने वाले लोग हमें अक़ीदतों की दोबारा तजदीद नौ ना कराएं तो हम अक़ीदतों को भूल जाएं। बहरहाल आप मोहब्बतों के शहर से शरीक हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस मौके पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ा उनकी हयात तय्यबा को कुछ ना कुछ बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाह। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अलैहिस्सलाम, ये आवाज इको हो रही है, आवाज को ठीक करें। जी, कंट्रोल रूम से देख लेंगे इंशाल्लाह। इन दुनियावी वसाइल को आप इंशाल्लाह जिक्र के रास्ते में थोड़ा ये इको हो रही ना, तो डिस्टर्ब हो रहा सारा, उसको कह दिए सही कर लें। हाँ, वो मैंने कह दिया, वो सुन भी रहे हैं, इंशाल्लाह वो ठीक कर लेंगे। आप जारी रखिए। बिस्मिल्लाह। जी, अब ठीक है आवाज़? आप बोलिए। जी, अब ठीक है?
हाँ अब ठीक है। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इमाम हुसैन टीवी का तहे दिल से शुक्र हूँ कि मुझे अपने चैनल पर आने का जिंदगी जो है और मेरा प्रोफेशन सहाफत, तो सहाफत की दुनिया में देखा जाता है हर चीज होती है और उसकी तह तक पहुंचा जाता है। तो अगर इमाम रजा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को दें तो ये पता चलता है कि एक वो हुकूमत, पावरफुल हुकूमत और ऐसी हुकूमत जो इस्लाम मुखालिफ थी, वो चाहती थी इमाम रजा अलैहिस्सलाम की दी माने। और वो इमाम जो मदीने के अंदर थे और मदीने के अंदर रहते हुए वो उनके पैगाम को पहुंचा रहे थे। और जाहिर सी बातचीत है, सिलसिला शुरू हुआ था डर्टी पॉलिटिक्स का नतीजा ये था कि के हाथों में ज़माम हुकूमत जाए उन पास चली गई जो लोग दुनियादार थे। और वो सिलसिला बनी उमैया से बढ़ते हुए बनी अब्बास तक पहुंच चुका। और इस्लाम की हयात तैयबा से पहले 7 इमामों के साथ वो किसी से छुपा नहीं था। और कुरान ने डर्टी पॉलिटिक्स से एक सियासी मसलहत को सामने रखते हुए ये चाहा कि इमाम को हम अगर अपने साथ जोड़ लेंगे तो एक ऐसा मैसेज जाएगा कि शायद उसकी हुकूमत को इमाम खुद सपोर्ट करते हैं। लेकिन इमाम अपनी शरारत कि मैं तुम्हारे हुकूमत के मामलात में किसी तरह का कि कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। हाँ, कोई मसला फंसेगा उसका हल मैं जरूर बता दूंगा। और यही हुआ कि इमाम ने जो क्या नाम है कबूल किया वली अहदी, उसका नतीजा क्या हुआ कि बादशाह के पास, मामून पास हर तरह के लोग आते थे, हर कौम के लोग आते थे। और के जो वो एक से एक सवालात होते थे। ईसाई अपनी तरफ से सवाल करते थे, तरफ से सवाल करते थे, आतिश परस्त अपनी तरफ से सवाल करते थे। और इमाम उनको उनकी किताबों से ही जवाब दे देते थे और उनको लाजवाब कर देते थे। तो ये इमाम का एक बहुत बड़ा मुआजिजा था, या यूं कहा जाए कि इल्म इमामत जिसके अंदर पाई जाती है वो वही करता है। जैसे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर हमारे सामने फैसले का तख्त बिछा दिया जाए तो हम तौरेत वालों का फैसला तौरेत से, ज़बूर वालों का फैसला ज़बूर से, इंजील वालों का फैसला कुरान वालों का फैसला कुरान से करूंगा। यही बात इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने मामून के दरबार में करके खा दी। और जब बड़े बड़े लोगों ने चाहा इमाम से मशवरा कर तो वो उनको शिकस्त उठानी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है इमाम रजा अलैहिस्सलाम का कि हमको न सिर्फ अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, दूसरे मज़ाहिब की किताबों को पढ़ना चाहिए। और कहा जाता है कि एक्सचेंज बिटवीन द रिलीजन, हर मजहब के लोगों के बीच में तबादला ख्याल होना चाहिए।
اور ظاہر سی بات چیت ہے کہ 1400 سال پہلے جو امام نے کیا تھا، جو دنیا بھر میں بہت سے ادارے قائم ہو رہے ہیں، وہ ادارے اسی واسطے قائم ہو رہے ہیں کہ انسان کو انسانوں سے قریب لانے کے لیے، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے، یعنی مذاہب جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے. باقاعدہ طور پر اس کے ڈپارٹمنٹ قائم ہیں بھی ہیں، اور یہ جو دنیا کے تمام ممالک کی اسلامک ممالک جو ہے، ملک جو ہے ایران، وہاں کے اوپر بھی بین المذاہب ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے. تو یہ جو سیرت ہے یہ کہیں اور سے نہیں ملی ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملی ہے، اور جو رسول کی سیرت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نے اپنا دکھایا، اختیار کیا دکھایا. ایک گستاخی ہوئی ان کے ساتھ میں، تو انہوں نے قالین کے شعر کو حکم دیا، قالین کو حکم دیا، اور وہ شعر حقیقی شعر میں تبدیل ہوا. اور اس کے بعد اس نے امام کے شان میں گستاخی کرنے والے کو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک قالین کے شعر کو اوریجنل شعر کے اندر تبدیل کر دیا گیا. تو سمجھنے کے لیے آج سمجھنا بہت آسان، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ کمپوزیشن آف ایٹم اور انرجی ہے. میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ ایٹم اور انرجی کا کمپوزیشن ہے، اور سب کچھ بنا ہے انرجی سے. تو نہ زمین ہوتا ہی نہ آسمان، یعنی کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا. ایک ذرے سے لے کر پھیلی ہوئی کائنات وہ انرجی بنی بھی ہے، چل بھی رہی ہے، اور اس کی بقا بھی اسی انرجی کی وجہ سے ہے. اور ظاہر سی بات چیت ہے، اس انرجی کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ پوری یونیورس کمپن آف ایٹم انرجی ہے، جیسا کہ میں نے کہا. اور وہ لوگ جو خدا کو نہیں دے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک گولا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود کے اندر آ گئی، یعنی بگ بینگ کی بات چیت ہوتی ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس کے بارے میں ابھی عقیدے میں کہا گیا، خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. انا والی من نور واحد، میں ولی ایک نور کے دو حصے ہیں. اور محمد والے وہ خود نوری ہیں. اور ظاہر سی بات چیت ہے، پاس نور کا کمانڈ ہوگا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. چونکہ ہم جو اہل بیت ہیں ان کو مشیت اللہ مانتے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی خود ہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے. اور ارادہ جو ہے وہ نور سے پہلے کی منزل ہے. تو ارادے سے نور خلق ہوا، اس کے دو حصے ہوئے اور کائنات وجود کے اندر آ گئی. تو ظاہر چیز ہے کہ جب ارادے سے نور خلق ہو سکتا ہے، یعنی انرجی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ جو قالین کا شعر ہے اس کو وہ اوریجنل شعر کے اندر بدلا جا سکتا ہے. آج کہتی ہے کہ اگر انرجی اور ایٹم کے کمپوزیشن کو چھ دیا جائے تو کوئی بھی چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اس نور کے کنٹرولر ہم ہیں، ہم وہ ہیں جو مشیت اللہ ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہیں. اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے امام نے چاہا کہ قالین شعر جو ہے وہ اوریجنل شعر کے اندر تبدیل ہو جائے، اور اس کے بعد وہ حکم کو مانے. اس نے حکم کو مانا
पहले तो वो शेर बना, तो कालीन के जर्रात ने इमाम के हुक्म को माना, फिर जब शेर बना तो को माना, और फिर जब वो खा चुका तो हमने हुक्म दिया, तो फिर वो अपनी जगह के ऊपर पहुंच गया। तो ये इस बात का मतलब आ जाए, इस बात की अक्कासी करता है ये वाकया कि अगर इंसान तरक्की करे तो उसको समझ लेना चाहिए कि आज कालीन के शेर को भी असली शेर सकता है। ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन कर कौन सकता है? जिसके पास इख्तियार हो। क्या इख्तियार हो? एनर्जी का इख्तियार हो। यही वजह है कि जब हमारे इमाम असर तशरीफ लाएंगे तो पूरी दुनिया जो तरक्की की है उसने एनर्जी से तरक्की किया है। आज पूरी दुनिया की तरक्की देख लीजिए, पहले उन्होंने इंसानों की ताकत का इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने जानवरों की ताकत का इस्तेमाल किया, फिर ताकत का इस्तेमाल किया, आज वो सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में तरक्की हो रही है और हम और आप बात, ये भी एक एनर्जी है जिसके इस्तेमाल से आप इतनी दूर बैठे हैं, हम आपसे जुड़े हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, एनर्जी से ही सब कुछ है। और बातचीत है, हमारे इमाम आएंगे तो फिर इमाम असर भी क्या करेंगे? तौरात वालों का फैसला तौरात से, ज़बूर वाला ज़बूर से, इंजील वालों का फैसला इंजील से करेंगे, और वो बताएंगे कि उनके सबसे बड़ी एनर्जी है, उनकी जुल्फ़िकार जो है वो उस एनर्जी से भरी हुई है। जुल्फ़िकार है जो पुश्तों के इन्वेस्ट कर लेती है, कि वो तलवार में अली के हाथ में थी। तो इसके मतलब इमाम अली ने बताए 70 पुश्तों को टेस्ट कर लेती है उनकी तलवार। जब डीएनए साइंस के में कोई सोच नहीं सकता, आज डीएनए ये बता रहा है कि अगर किसी चीज का डीएनए चेक किया जाए कितनी पुरानी है वो पता चल जाता है। तो इमाम की जो तलवार थी इमाम अली की, वो 70 पुश्तों को चेक करती थी और टेस्ट भी क्या करती थी, उसमें अगर कोई पैदा होने वाला हो, यानी इंसान नहीं, इंसान पलट होगी जो दुनिया की कोई मशीन आज तक नहीं चेक कर सकी कि उसका रिलीजन क्या होगा, वो फेथ क्या होगा, वो मानेगा। लेकिन इमाम ज़मान तो फिर उसी तलवार से जो 70 पुश्तों को चेक करती है, यानी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी से पूरी कायनात को, कायनात के अंदर जो चाहेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि वो उसके वारिस हैं। जमीन पर रहकर चांद के 2 टुकड़े कर देता था, वो उसके वारिस हैं। जमीन को घुमाने के बाद डूबे हुए आफताब को दोबारा कर देता था। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो सिलसिले की 8वीं कड़ी है, और जाहिर सी बातचीत है अल्लाह ने उनको इख्तियारात दिए हैं, और ये सब के सब, और नूर के बारे में आज लोगों को समझना पड़ता है कि आज दुनिया जो है जितनी भी तरक्की कर रही है उसने इस्तेमाल करके ही तरक्की हासिल की है, और कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब की एनर्जी का सोर्स क्या है? वो नूर है। और जाहिर सी बातचीत है, सूरज को कितनी एनर्जी चाहिए, चांद को कितनी एनर्जी चाहिए, किसको क्या क्या एनर्जी चाहिए, तो वो सारी मिल रही है। वही वजहुल्लाह है। खल्क करना होता तो ना अल्लाह जमीन खल्क करता, ना आसमान खल्क करता। बस ये है कि वो नूरानी मखलूक अल्लाह का तारुफ कराने के लिए आई थी, और हालात में तारुफ कराया कि दुनिया उस हालात में तारुफ नहीं करती थी। इख्तियार रखने के बावजूद इमाम अली ने सब्र किया, इख्तियार रखने के बावजूद इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हर तरह की कुर्बानियां की। इख्तियार रखने के बावजूद हमारे तमाम आइम्मा ने
सब्र से काम लिया। सलामत वो रहे, क्या मौला है? आपको खुश वो नूरी है। रखें। आखिरी 2 मिनट में अगर कोई पैगाम देना चाहे मौला के इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम कि आखिर क्या है वो नूर। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने 2014 में बहुत बड़ी रिसर्च की और उसमें तो उन्होंने एनर्जी के पार्टिकल को तोड़ा और इस काम के लिए उन्होंने 27 किलोमीटर की एक मशीन बनाई। मौला आपको सलामत और उसमें रखें। एनर्जी के पार्टिकल को तोड़कर कहा कि पूरी यूनिवर्स एनर्जी से बनी है। सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। 1400 साल से आखिरी 2 मिनट बचते हैं, 2 मिनट बचते हैं। इसमें अगर कोई इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक का कोई पैगाम देना चाहे मोमिनीन को तो 2 मिनट हैं आपके पास, बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उसी इमामत की कड़ी है, उसी नूरी सिलसिले की कड़ी है। मेरा यह पैगाम है कि सबसे पहले जो है ये सिर्फ फानी नूर बल्कि नूर को समझें भी, क्योंकि और एक मैसेज दें कि नूर जो है वो किसी ताज नहीं है, वो सिर्फ खुदा का मोहताज है। अगर ये आइम्मा नूर जो है, अगर ये नूर ना होता तो न जमीन होती, न आसमान होता, न चांद होता, न सूरज होता, कुछ भी नहीं। जो कुछ बना है नूर से बना है, जो कुछ चल रहा है नूर के बदौलत चल रहा है। और हम उसी नूरानी से अपना इमाम कहते हैं। इस जिम्मेदारी बनती है हमारी और हमको देखने वालों को कि वो इमाम क्या जो नूरानी क्या नाम है, जो ईरानी पैकर है उसके बारे में बताएं, पता चले कि जब इमाम ज़माना आएंगे कैसे पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और अदलो इंसाफ से भर देंगे। याद रखिए, आज जिसके पास एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है उतना ताकतवर है। हम उस इमाम के मुंतज़िर हैं जिसके पास कायनात को कंट्रोल करने वाली एनर्जी है और ये उसे अल्लाह ने दिया है। और जाहिर सी बातचीत है, जब वो आ जाएंगे तो फिर जितनी भी चीजें हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और इमाम इशारे के ऊपर एटम बॉम्ब हो या जेट्स हो, ये सारी चीजें जिस वक्त इमाम चाहेंगे चश्मे ज़दन में उस एनर्जी से हो जाएंगी और दुनिया अदलो इंसाफ से भर जाएगी। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम या हमारे किसी भी इमाम के बारे में हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके पहलू के ऊपर ज्यादा सा रोशनी डालें। हम उनके बात क्या कर देते हैं, उनके मौज़ात तो बयान कर देते हैं, लेकिन अब आज पूरी दुनिया एनर्जी की तरफ जा रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नूरानी सिलसिले को, इस गोल्डन चेन को, इस सिलसिलत ज़हब को किसी कड़ी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम है दुनिया से उनका तारुफ कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, मौला आपको सलामत रखें। जी चाहता था काफ़ी तुलानी हो बात, लेकिन महदूद वक्त ने मजबूर किया। बहरहाल दामन वक्त की गुंजाइश, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी खिदमत में रहेंगे और उम्मीदवार रहेंगे आप अपने वक्त को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस चैनल के लिए वक्फ फरमाएंगे और मोमिनीन के लिए भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के मारिफ पर रोशनी डालने के लिए इंशाल्लाह शिरकत फरमाते रहेंगे। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। दुआ है खालिक कायनात आपको जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में, फ़ी अमानिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 आप सबकी खिदमत में आप सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल करने के लिए बरसरे पैकार है और हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वसल हो जाइए। बहरहाल हमारा तवस्सुल, हमारा मौला से वसल होना, हमारा मौला से राब्ता होना, हमारा मौला से मिल जाना, मौला को हम पुकारें, मौला को हम बुलाएं, मौला को याद करें किसी भी तरीके से हो, यकीनन
खुलूस शर्त है। किसी भी ज़रिए से मौला से आप मुत्तसिल हो जाते हैं, खुलूस उसकी अव्वलीन शर्त है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करें और मौला से मुत्तसिल हो जाएं। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद, या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 करबलाई मोहल्ला में आप प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हैं। आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में गूंज रही है माशाल्लाह। आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं और चैनल की डोनेटर और स्पॉन्सर हैं। चाहूँगा करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए और तवस्सुल फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या बाब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना अमीरुल मोमिनीन व अपना सय्यदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम अपना फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा जल्ल वली कल फरज अल्तमस दुआ। मौला आपको सलामत रखें, सेहत व आफ़ियत से रहें। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें और खुदावंद मुताल आपको जल्द करबलाए मोहल्ला आने का शरफ अता फरमाए। आपके घर में जो जो मुश्किलात हैं खुदावंद मुताल उन्हें हल फरमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सदका मौला दुनिया और आखिरत आपकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के क़ुर्ब व जवार में करार दे और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रहमतों के साए तले रहें। खुदावंद मुताल आपको हमेशा सआदत मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब फरमाए और ये सआदतें आपकी नस्लों में जारी व सारी रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसका दौरानी आपको मालूम है इंडियन टाइम रात 10:30 से 12:30, 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम। आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और 14 मोमिनीन को भी ये शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शरीक हो सके और यकीनन वो शरीक होकर मौला को सलाम भेजेंगे, सवाब हासिल होगा, उसमें आप भी शरीक कार होंगी। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएँ। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया आपका। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में करबलाई मोहल्ला में मौला के साथ आप सब की इस निस्बत के प्रोग्राम को हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और हमारी चाहत होती है कि आप इसमें कॉल करके मौला से अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का इजहार फरमाएं और इस प्रोग्राम को आपने अपना लिया है। हमें इस बात की खुशी है कि आप देखें, अपना फ़ायदा और अपना भला जिसे देखना आ गया वो कामयाब हो गया। सनाए इमाम रिज़ा इस तरह से की जाए, सनाए इमाम रिज़ा इस तरह से की जाए, गुज़र के तूस से आफाक तक सदा जाए, गुज़र के तूस से आफाक तक सदा जाए। हो एक नाराए मस्ताना बरसरे महफिल, ज़मी रक्स करे झूम ये समा जाए। जो आप खुल्द से सैराब होना चाहता है वो निशापुर में बर चश्मे रिज़ा जाए। सीमा जबी साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरमा सीमा जबी साहिबा, या अली मदद। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सीमा जबी साहिबा? शायद कुछ आवाज़ में तात्तुल है। सीमा जबी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में गूंज रही है। अगर आप समाज फरमा रही हैं तो करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने मौला को सलाम पेश कीजिए, अपना तवस्सुल भी कीजिए। बिस्मिल्लाह। शायद नेट में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से कॉल में कोई तात्तुल पैदा हुआ है। बहरहाल दुनियावी वसीलों का यही हाल है, कहीं पर भी साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए हमने उन वसीलों को इख्तियार किया। हर तरीके से उन तक पहुंचा जा सकता है। बहरहाल हो इश्क़ आले मोहम्मद लहू में ऐसे रवां,
मवद्दतों का ये नस्लों में सिलसिला जाए। अली अली की सदाओं से ऐसी गूंजे फ़ज़ा, अली अली की सदाओं से ऐसी गूंजे फ़ज़ा, जो फ़िक्र बुग़्ज़ व अदावत का दिल हिला जाए। जी, सीमा जबी साहिबा कराची से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। या अली मदद, या अली मदद, इमाम हुसैन मैं अलैहिस्सलाम अपना की सलाम पहुंचाना चाहती जी हूँ। जी 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 बिल्कुल इमाम के बिल्कुल रोज़े पे मेरा सलाम, और मैं दुआ करवाना चाहती हूँ कि मैं जल्द जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। दिल पे हाथ रखें, करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाएं, नज़रें झुकाएं, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए और अपनी तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से अपनी तमन्नाएं मौला की बारगाह में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या मौला, मेरी दुआ है कि मैं अपने वालदा के साथ जल्द से जल्द हाज़िरी करूं, अपने बहन भाइयों के साथ, और इस वक्त जो हालात हैं उनमें मैं जल्द से जल्द ईरान की पता चाहती हूं, और मेरी ये दुआ है कि जल्द से जल्द हमें पता ना हो, और हमारे जो मौला का जो भी है रोज़ा, उस पे हम हाज़िरी दें, हम बीबी के रोज़े पे हाज़िरी दें, बीबी ज़ैनब के रोज़े पे हमें हाज़िरी नसीब हो। इलाही आमीन। मौला आपकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। बहन, जिस प्रोग्राम में आपने कॉल मिलाई है इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इसका टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान होता है, 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम है। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। एक जो अर्ज़ अदब है वो ये है कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की मकबूलियत के वास्ते, परेशानियों के हल के लिए, और अपनी अपनी जो हाजात शरइया होती हैं उनकी बारावरी के वास्ते। इसमें हमने सिलसिला रखा है नजर का, चैनल की मुआवनत की नीयत से। आप इस नजर में शरीक होना चाहेंगी? जी जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़रूर, वो ऑपरेटर्स आपको मज़ीद गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। इस नज़र को आप जो हस्ब तौफीक आपने जहन में सोचा है, इस नज़र को 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और शुहदाए करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में से किसी एक नाम लेकर उससे निस्बत दे दीजिए ताकि आपको मज़ीद अजर हासिल हो सके। जी, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ही नज़र करती हूँ, उनके रोज़े के उनकी नज़र करती हूँ। तो जो भी तरीक़ेकार है आप मुझे बता दीजिए। मौला आपके इस नज़र को कबूल फरमाए और आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, कभी किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दे। हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में खर्च करने के लिए आपके पास रिज़्क़ फरावान हो। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। इस नंबर को एक और मुआवनत आपकी ये भी शामिल हाल रहे कि 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर और प्रोग्राम का टाइम ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिनीन भी इससे मारफी और आगाही पैदा कर सके और इसमें शरीक हो सके। यकीनन उसमें भी आपका अजर शामिल होगा। मौला आपको सलामत रखें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सदा आबाद रहें। मौला आपकी हाजात शरइया पूरी फरमाएं। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। फ़ी अमानिल्लाह। मौला की अमान में रहें। हम जहाँ पर मौजूद हैं ये करबला है और करबला मौला की मोहब्बतों का, मौला से मोहब्बतों के इजहार करने का मरकज़ है। रखे जो ज़र्रा बराबर भी शक इमामत में, सक़र में जलता रहे आग उसको खा जाए। मए विलाए रिज़ा आज ऐसी पी जाए, सरूर दायमी कल्बो नज़र पे छा जाए। ए मौला आपके कदमों की ज़ियारत हो नसीब, हुज़ूर शाह खुरासां ये दुआ जाए। ये मदहे मौला रिज़ा सुन के कहें मासूमा, नजम का नाम ग़ुलामों में लिख दिया जाए। अरसलान नजम नजमी सा अरसलान रिज़वी नजम साहब का ये कलाम था जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। हम जिस मकाम पर मौजूद हैं मौला की बारगाह में आपके तवस्सुलों के मुंतज़िर हैं। जनाब वज़ीर अली मशहदी साहब हमारे साथ जैकबाबाद से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। जनाब वज़ीर अली मशहदी, अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। गालिबन आपके समात में कोई वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से। जी वज़ीर अली मशहदी, अस्सलामु अलैकुम या अली मदद।
सलाम और अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कैसा क़िबला ठीक है? करम है करीम करबला का मौला की बारगाह में है और आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मिली हुई है। इसका दौरानिया 2 घंटे है पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान। माशाल्लाह आप हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं और चैनल के डोनेटर भी हैं माशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं, करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं और मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह इनायत। मेरे आका मेरे मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। एक करीम करबला है, नवाब करबला, सरदार करबला, आपको वास्ता है जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का मेरे मौला जिन जिन मोमिनीन मोमिनात की दुआएं हमारे ज़िम्मे लगी हुई मौला तमाम मोमिनीन मोमिनात की दुआओं को बरूए कर लाए। मेरे मौला जो बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली अता फरमाइए, जो बे औलाद उनको औलाद अता फरमाइए। मौला जो बेखता बेजुर्म कैद है असीर है मौला उनको रिहाई अता फरमाए। मेरे मौला जिनको अपना घर नहीं अपनी छत नहीं आपको वास्ता है मौला सय्यद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सबील का सदका मौला उनको अपना घर छत अता फरमाइए। उनके तो फिर मौला हमारे ऊपर अपना करम लुत्फ कीजिए। मेरे मौला बिलखुसूस आया में जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम करीब आ रहा है। 27 ज़िक़ैत को मौला रज़ा की शहादत का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हमारे पास। मौला उसके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अपना लुत्फ अपना करम कीजिए कि खैर व आफियत से खुश असलूबी से जितने भी मौला के ज़ाकिरीन मातमदार अंजुमने और जितने उलमा कराम आए मौला वो खैर व आफियत से आए और खैर व आफियत से अपनी मंजिलों की तरफ जाके रसीदन हो। और मौला आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए खुसूसन अपनी नजर करम कीजिए कि करीम करबला, नवाब करबला, सरदार करबला ये आपकी औलाद है मौला अली इब्न मूसा रजा मौला का प्रोग्राम ऐसा हो मौला ऐसा हो कि जिस तरह हमारा हमेशा यही दिल करता है कि जब भी प्रोग्राम होता है हमारे आका मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम हमारे पास मौजूद होते हैं। अपने गुनाहगार आंखों से मौला की 2 मरतबा ज़ियारत खुदा ने नसीब की है। करीम का बड़ा एहसान है, इमाम रज़ा का बड़ा एहसान है मौला। बस इस प्रोग्राम के लिए पूरा साल मुशक्कत मेहनत करता हूँ कि मौला किसी से भीख न मांगनी पड़े, मौला किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मौला वो रिज़्क़ अता फरमाए जो आपके बाबे की नालैन का सदका, आपके नाने की नालैन का सदका रिज़्क़ हो। मेरे मौला उसी रिज़्क़ से, उसी हिलाल के रिज़्क़ से मौला के हर प्रोग्राम को जो है वो खुश असलूबी के साथ निभाएं। मेरे मौला हमने आज कहीं एक खैर वाफियत का मस्जिद अली में फैसला था, 2 मोमिनीन आपस में अटक गए थे, बस उनकी सुलह करके भी वापस आए। उनके लिए भी दुआ करूं कि मौला आगे उनको आपस में खैर वाफियत से रहें। माशाअल्लाह करीब आ रहे हैं, मोमिनीन की जो रंजिश है, मोमिनीन के गम व गुस्से मौला उनको दूर फरमाएं। हमारे फकत एक ही जो है वो काम है मौला, आज़ादारी मज़लूम करबला, जिक्र मज़लूम करबला, इबादत मज़लूम करबला, तवज्जो मज़लूम करबला। मौला हम औरों कामों से हमें महफूज रखे मौला। आपको वास्ता है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का मौला। और बिलखुसूस इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क के लिए मैं दुआ गो हूँ कि मौला इन्हें कभी दुख न दे, मौला इन्हें कोई तकलीफ न दे, मौला इनकी ऐसी गैबत में मदद फरमाइए, ऐसी गैबत में मदद फरमाइए कि ये चैनल दुनिया भर में मोमिनीन के अलावा उन घरों में भी राइज हो जाए जो अली वलीउल्लाह के दाई हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि आले मोहम्मद का ये काम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। कल मेरे ब्रदर आगा मरहूम मेहदी गुलालाई के 40वां है, उसके लिए बिलखुसूसन दुआ की अपील है कि खैर वाफियत उनका 40वां कल हो जाए। हज़ारा टाउन कराची कोटिया में होगा। मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह इलाही में मुस्तजाब फरमाइए और हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़रूर फरमाइए। मौला को हमसे खुशनुद राज़ी फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामत रहें, आबाद रहें और हमेशा कॉल करते रहें और मोमिनीन को भी नंबर शेयर कीजिए ताकि वो भी शरीक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। फी अमानिल्लाह।
मौला की बारगाह में आप सबको दावत देते हैं कि कॉल कीजिए, तवस्सुल कीजिए, इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझिए और यकीनन आपका अपना प्रोग्राम है, आप समझते हैं। माशाल्लाह मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं। माशाल्लाह ये 2 घंटे का प्रोग्राम जारी व सारी है। इसमें बहुत सारे मोमिनीन शरीक हो चुके हैं, नए भी इस कारवान में शरीक हो रहे हैं। मौला आप सब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। बहन आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर के ज़रिए से करबलाए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है और उम्मीदवार हैं कि आप हमेशा इसी तरीके से तवस्सुल के लिए इस प्रोग्राम को इख्तियार फरमाती रहेंगी। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और चैनल की स्पॉन्सर हैं। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत और तवस्सुल करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वल अरवाह लती हल्लत बिफिनाइका वनात बिरहलिका अलैकुम मिन्नी सलाम अलैहि अबदा मा बकीतु व बकील अलवानिहा वला जअलल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुन लिवलीका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिर व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही बहा के मौला हुसैन, इलाही बहा के बाबुल हवाइज, इलाही बहा के बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हम सब के जायज़ हाजात कबूल फरमा। इलाही बहा के मौला हुसैन, इलाही बहा के बाबुल हवाइज, जहाँ जहाँ परेशान हाल है आप सबके परेशानियाँ दूर फरमा, बीमार शफायाब फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इलाही बाकी अमीर अल-मोमिनीन बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जल्द से जल्द बुलाए, अपना दर्द दिखाई मौला, आशूरे पे बुलाए, चहलम पे बुलाए मौला, जल्द से जल्द बुलाए। हमारे बच्चों के साथ बुलाए, बच्चों को मारिफत दे, मोहब्बत दे मौला। इलाही बा के मौला हुसैन, इलाही बा के बाबुल हवाइज, इलाही बा के शहज़ादा कासिम, शहज़ादा अली अकबर और मोहम्मद, शहज़ादा अली असगर, बहक के बीबी सकीना। या अल्लाह हमारे बहन भाई भतीजे भांजे सब दोनों मौलाना साहब मेरे भाई लंबी उम्र अता फरमा, सब पे नजर करम फरमा, सेहतियाबी के साथ नेक अमल के साथ लंबी उम्र अता फरमा, और चैनल वालों को भी तरक्की अता फरमा, हमारे वालिदैन को मग़फ़िरत नसीब फरमा, सारे मोमिनीन को मग़फ़िरत नसीब फरमा, दरजात बुलंद फरमा, मेरा भी सगीरा कबीरा गुनाह ने माँ फरमाइंदा गुनाहों से महफूज फरमा। जज़ाकल्लाह खैर भाई, सब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, जज़ाक मौला आपको सलामत रखे। बहन 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिन भी मौला से अपनी तवस्सुल पेश कर सकें। मौला आपको सदा सलामत रखें, हमेशा चलते हाथों पैरों रखें और किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज न होने दें, सदा सलामत रहें, मौला की अमान में रहें, मौला आपको खुश रखें, हुज्जत खुदा अपने मददगारों में शुमार फरमाए, सलामत रहें आप। मौला से तवस्सुल, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल हम सब के लिए बाइस शरफ़, इज़्ज़, सआदत है और यही हमारे लिए एक अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी इनायत है जो कि हमें नसीब हुई है। क्योंकि देखें जब भी कभी किसी बड़े से मुलाकात करनी हो ना तो इंसान कोई ना कोई रवाबित, ताल्लुकात, नाते, रिश्ते तलाश करता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ने इनसे बड़ा किसी को नहीं बनाया, इनको जो फजीलत दी है अल्लाह ताला ने
किसी और को ऐसी फजीलत नहीं मिली, हर नबी की फजीलत इनके अंदर शामिल कर दी अल्लाह ने, लिहाजा सबसे बेहतरीन है। लेकिन इनसे राब्ते के लिए जो रिश्ता नाता राब्ता अल्लाह ताला ने खल्क किया है वो खुलूस है, खुलूस नीयत है। इसके ज़रिए से हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल हो सकते हैं, मुत्तसिल हो सकते हैं। जिसने इन्हें पा लिया उसने अल्लाह को पा लिया। यकीनन इनके साथ रब्त अजीब व गरीब माना रखता है, और इनसे जिसने रब्त पैदा कर लिया वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज़्ज़त पा जाता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब्त रखना है, उनसे खुलूस रखना है। यही हमारा नूर है, यही हमारे लिए रहमत है, यही बरकत है, यही नजात है, यही सआदत है, यही इज़्ज़त है, यही वक़ार है, यही हमारे लिए मार्फत है, यही इल्म है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब होना चाहिए। पहली चीज़ है कुर्ब। कुर्ब के बाद हमें इनकी आगे की बातें करनी है, उनकी ज़ाहिरी मार्फत, उनकी हकीकी मार्फत, दलीलें, उसके लिए अपनी अखलाकी तामीर, जो कुछ भी करना है पहले अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब, तो उसके बाद नतीजे मिलते चले जाते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर चीज़ पे फौकियत क्यों रखती है? क्योंकि जब यहाँ पे वासल हो जाएंगे तो दूसरों से दूर हो जाएंगे, और इनके करीब होने का मतलब हक बात की पैरवी है। मंजर हुसैन साहब कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, रात में 10 से 12 के दौरान। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में गूंज रही है। अपनी तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से, अपने असातिज़ा, अपने नेक हमसाए, अपने बुज़ुर्ग, ऐसे वो अजीज़ जो आपके साथ रहे आज आपके साथ नहीं है, जो खाक के बिस्तर में पैवस्त हो गए, उनको भी याद करते हुए उन सब के लिए जिन्होंने आप पर एहसान किए, नियत कर लें, करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने आका व मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला सहाबे हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं, आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, कभी आपको भी आबाद रखे मौला। इलाही आमीन। मौला आपको कभी किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना होने दें। आपकी जो जो नेक हाजात हैं पूरी फरमाएं। दुनिया और आखिरत के इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाएं। आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की विला के अकीदे में आपको मज़ीद मुवस्सक और कुदरत अता फरमाएं, और आपके घर में जो जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं। जवानों की ज़िंदगियाँ दराज फरमाएं। बच्चे जिस घर में नहीं उसको बच्चे अता हो जाएँ, जिनके यहाँ औलाद नहीं औलाद मिल जाए, जिसके घर के अंदर औलाद नरीना नहीं मौला आपके ख़ानदान में औलादें नसीब हो जाएं। आपके घर में जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, नाचाकियाँ दूर हो जाएं। खुदावंद मुताला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। हुज्जत खुदा के मददगारों में शामिल रहें हमेशा, और दुनिया और आखिरत आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। मौला आपको सलामत रखे। मंदर साहब, इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और मौला से अपने इखलास को जाहिर करने के लिए और चैनल के साथ मुआवनत की नीयत से नज़र करते हैं, तो क्या आप भी हस्बे तौफीक इसमें अपना हिस्सा डालना चाहेंगे? इंशाल्लाह जरूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस नज़र को आप चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में से किसी एक फ़र्द का नाम लेकर उनसे निस्बत दे दीजिए ताकि आपको मज़ीद अजर हासिल हो जाए। कोई एक नाम ले दें अहले बैत के घराने का। मतलब मौला वालों के एक नाम तो नहीं ले सकता मैं। 12 पंचन पाक, 12 इमाम और 14 मासूम के वसीले मोमनात के लिए नेक दुआओं के तलब करता हूँ। हर एक के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, और इसी तरीके से आपका खुलूस मौला से बरकरार रहे। हमेशा मौला की राह में तकसीम करते हैं। खुदावंद ने मुताला आपको इतना माल और रिज़्क़ दे कि आपके नाम के लंगर खाने चला करें। मौला आप पर रहमतें
बरकतें नाज़िल फरमाए। इस व्हाट्सएप नंबर को आपने नोट कर लिया है, प्रोग्राम का टाइम आपने यकीनन याद रखना है। 14 मोमिनीन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिनीन शरीक हो सके और इस तवस्सुल में शरीक हो। यकीनन आपका भी उसमें अजर शामिल रहेगा। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे, सदा आबाद रहें, मौला की अमान में रहें। फी अमानिल्लाह। ज़ुहैब जाफ़र साहब कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम यानी मदद सर। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें। माशाल्लाह आप हमारे मुस्तकिल कॉलर और चैनल के डोनेटर हैं। 14 मोमिनीन को और भी प्रोग्राम का वक्त नोट करके बताएंगे और ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर फरमाएंगे। अब आप करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, खड़े हो जाएं और नज़रें झुका के अपने मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सर मेरी ज़रा जॉब की परेशानी भी चल रही है और उसके लिए दुआ करवा दें। मौला आपको सलामत रखें, आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं। आपको खुदावंद मुताल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सदका, मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम का सदका बेहतरीन रोज़गार अता फरमाएं और माल और रिज़्क़ में आपने इजाफ़ा फरमाएं और आपके घर में जो जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं और जो बीमार हैं मौला आपके ख़ानदान में उन्हें सेहत अता फरमाएं, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाएं, जो मोमिनीन आपके ख़ानदान के अंदर अपने बाल बच्चों की शादियों, अपनी शादियों के गरज से परेशान है मौला उनकी परेशानियां हल फरमाए और आप सबको जल्द करबलाए मौला अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है मुक़द्दसा से फैज़याब फरमाए। दुनिया आखिरत आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हो, हुज्जत खुदा अपने मददगारों में आपको शुमार फरमाए। सदा सलामत रहें और हर घड़ी हर लहज़ा हर पल आपके ऊपर मोहब्बत व उल्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम रोज़ अफजून ज़्यादा होती चली जाए। सदा आबाद रहें और दुआ है जल्द आप खुशखबरी सुनाएं कि अल्लाह ने आपको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। सलामत रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। आबाद रहें, मौला की अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह। मौला से तवस्सुल हमारा अल्लाह ताला की बारगाह में एक बेहतरीन ही शरफ़ है और हमें ये शरफ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुलूस से मिलता है। खुलूस को पैदा कैसे किया जाता है? मवद्दत जब शुरू कर देते हैं खुलूस की सीढ़ी। हाँ, ताहिरा साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। जी मैं मौला हुसैन को सलाम कहना चाहती हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में गूंज रही है और इसका दौरानिया 2 घंटे है पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें, मौला की बारगाह में सर झुका के अपना सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला पर रहमत सबको जल्द से जल्द करबला बुलाए और इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी जो भी मुश्किलात हैं हल फरमाएं, सेहत व आफियत से रहें और ये आपका अपना प्रोग्राम है। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। 14 मोमिनीन को व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहन इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं अपनी हाजात की बारावरी के लिए, मुश्किलात के हल के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए। एक नज़र का सिलसिला रखा है हमने चैनल की मुआवनत की नीयत से। क्या आप उसमें अपना हिस्सा मिलाना चाहेंगी हस्ब तौफीक? जी मुझे आपकी आवाज़ कट कर आ रही है चैनल में हमारे पास एक सिलसिला है जिसमें मोमिनीन अपना हिस्सा मिलाते हैं नज़र में, तो क्या आप इस नज़र में अपना हिस्सा मिलाना चाहेंगी?
नजर किस उससे मैं हस्बे तौफीक अपना हिस्सा मिलाना है आपने इसमें, नियत कर लें आप हस्बे तौफीक। अच्छा हाँ बिल्कुल, कम से कम भी हो सकता है, जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी उसके एतबार से है, इसमें कोई अमाउंट महदूद नहीं है, जितने आप कर सकते हैं। चले इंशाल्लाह मैं जो हो सकता है जरूर जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस खुलूस का आपको अजर मिलेगा इंशाल्लाह, और मौला आपके मालो रिज़्क में इजाफा फरमाएंगे। जी, और मेरी वालिदा का भी सलाम मौला को हुजूर पहुंचा दीजिए। हतमन हतमन, आप खुद कह रही हैं, मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, आपकी तरफ से भी पहुंच रहा है, यहाँ पर हम भी नायब ज़ियारत हैं। इस नज़र को आप 14 मासूमीन, जो आपने ये नज़र का इरादा किया है ना, इसको अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द का नाम ले दे ताकि आपको ज़्यादा अजर हासिल हो सके। 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम। मैंने ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मेरी व वालिदा का आले। सलाम भी मौला के हुजूर पहुंचा दीजिए। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालिदा मौजूद हैं, तुमसे कहिए खुद। सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह हुसैन, मेरे भी सलाम पहुंचाइए करबला, तो हमें भी हमें ज़वार बनना है मेरे इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी हसरत को रंग लगाएं और आप जल्द करबलाए मौला आएं। मौला आपको हमेशा चलते हाथों पैरों रखें और किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना होने दें। और ये प्रोग्राम का टाइम नोट कर लीजिए, नेक्स्ट भी कॉल करते रहिएगा आप, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सदा सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें। हमारा मौला अब्बास को, मौला हुसैन को, जहाँ जहाँ आप जाएंगे हर जगह हमारा सलाम पहुँचाइएगा। ज़रूर हतमन, नेक्स्ट आपने ज़रूर कॉल करनी है और खुल के आप सलाम दुआ मौला को सलाम ज़ियारत पढ़ें। और हम करबलाए मौला में ही मौजूद हैं, यहाँ पे आप कॉल करते रहें मौला से तवस्सुल करने के लिए। बाकी सारी टाइम रात 10 से 12 के दौरान प्रोग्राम होता है। सलामत रहें, आबाद रहें। आइए मिलकर हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के जरिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।